Hello and welcome to this new episode of Brain and Spine Surgery. I am Dr. Jaydev Pranchavag on behalf of Synapse Brain and Spine Foundation. In this episode, I want to show you some of the cases which will very clearly demonstrate as to what causes trigeminal neuralgia. मेरा नाम अनुराधा जयवंत है। मैं 32 साल की हूँ। मुझे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ये बीमारी थी। 4 साल से मैं इस बीमारी से परेशान थी। मुझे ये बीमारी बहुत ही तीव्र थी। मेरे चेहरे के बाईं तरफ में करंट जैसा आता था। मैं बोल नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी। मामूली सा हवा का झोंका भी सहन नहीं कर पाती थी। किसी का वहां हाथ लग गया तो भी सहन नहीं होता था। मेरी बेटी तब बहुत ही छोटी थी, 1.5 साल की थी। दरअसल उसके जन्म से पहले ही ये तकलीफ शुरू हो गई थी। जब वो 1.5 साल की हुई तब मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरी बच्ची अगर मेरे पास आई तो वो मैं सहन नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ही टेंशन आ जाता था। आगे सब कैसा होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं उसके साथ बोल नहीं पाती थी। खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अभी मैं ये आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगी। आखिर में ये परेशानी तो इतनी बढ़ गई कि मैं और मेरे पति SMS करके एक दूसरे से बात किया करते थे। हम लोग एक दूसरे से मामूली तरीके से ऐसे बात नहीं कर पाते थे। इसके आगे का रास्ता भी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर जयदेव पंचवाग ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो एक न्यूरो सर्जन है और इस बीमारी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ये जानकर हम उनको मिलने चले गए। उन्होंने मुझे आते ही बता दिया कि ये बीमारी सर्जरी से ठीक होगी। तुम्हारे लिए और कोई भी दूसरा चारा नहीं है। फिर हम लोग सोच में पड़ गए। ब्रेन की सर्जरी सुनकर डर लगने लगा। उन्होंने हमको ये भी बताया कि हर एक सर्जरी में थोड़ी बहुत रिस्क तो होती ही है, लेकिन अगर तुम्हें पूरी तरह से इस दर्द से छुटकारा पाना है और जिंदगी जीना है तो ऑपरेशन यही एक मार्ग है। हम लोगों ने सिर्फ 1 दिन में विचार पक्का किया और इस पे निर्णय ले लिया, क्योंकि मेरे लिए ये डू और डाई की परिस्थिति बन गई थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि क्या बोलूं। रिश्तेदारों से बात करके मदद के लिए पूछा, क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी तब। रिश्तेदार तैयार होने के बाद हम लोगों ने तुरंत ही डॉक्टर जी से संपर्क साधा। उनको ये पूछ लिया कि कब जल्द से जल्द हम लोग ये सर्जरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत ही करेंगे। 2 दिन के बाद की ही तारीख उन्होंने मुझे दे दी और मैं एडमिट हो गई। मैं शायद सोमवार के दिन गई थी और गुरुवार के दिन मैं एडमिट भी हो गई। दूसरे ही दिन मेरा ऑपरेशन भी हो गया। The cause is the neurovascular conflict. What does it mean? It means that the nerve which comes out of the brain just above the medulla oblongata and below the pons, that is pontomedullary junction, that is brainstem, and then comes out and then supplies one part of the face. It is getting continuously compressed by a blood vessel inside the skull, of course, but it is getting compressed by a blood vessel. Why does it happen in these patients? Because their anatomy is as such, their size of the posterior fossa or the space where the nerve lies, specific blood vessel shape is such that starting from the birth, the blood vessel is precariously near the nerve. As the age advances, the blood vessels, they become elongated, they become long. Now this happens in everybody. For example, if you look at an elderly person's hand, you will see a tortuous vessel. As the age advances and the vessel is elongating, what will it do? It will slowly burrow itself into the nerve. And where is this happening? It is happening inside the skull, that is near the brainstem. As it is progressively burrowing itself in the root entry zone, it will start imparting its pulsations, because blood vessels, that's arteries, have pulsations. In brain, even veins have significantly strong pulsation. So these are the pulsations hitting on the nerve. Okay. Now these pulsations are causing damage to the nerve over the period of time, and they cause demyelination. Or in simple words, let's say they remove coating from individual nerve fibers. So there is a short circuiting. It is called as demyelination. After separating this, our job is to keep it separated by a Teflon sponge. This is a Teflon sponge which is made up of fibers
from Teflon, and this is a non-absorbable material. This material doesn't get absorbed in the body, so which means that it remains there permanently. ऑपरेशन के 9 दिन बाद में मैं इतना बोलने लगी थी क्योंकि 4 सालों में मैंने कुछ भी बात नहीं की थी और मेरा स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं बहुत बातूनी हूँ। जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितना बोलूं और किन लोगों से मैं बात करूं। मैं बहुत ही खुश हो गई थी कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकल आई हूँ और उसका अंत हो गया है। अब मेरी लाइफ अच्छे से मैं जी पाऊंगी, मेरी बेटी की तरफ मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊंगी। मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। फिर मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर चली आई। मेरी बीमारी एकदम से ठीक हो गई है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मैं जॉब भी कर रही थी, लेकिन 4-5 महीनों के बाद बच्ची की स्कूल की वजह से जॉब को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मैं सब कर पाती हूँ। मैं मेरी जिंदगी पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। मैं अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ और मुझे ये यकीन है कि ये बीमारी से मैं पूरी तरह से मुक्त हो गई हूँ। ये सर्जरी होकर मुझे काफी साल हो चुके हैं और मैं एकदम स्वस्थ हूँ।